Good morning, runners. Again, I'm with you with your question answer sessions. So today I'm going to discuss 3 questions. So the first one is how to choose a coach, and the second one is related to the same, how to breathe during running, say long distance running, marathon. So first is how to choose a coach. See, when you are going for a training program, first you choose what you first you have to have love for running. Once you go out from your house, you go to the park, you meet people, you get friends, running friends. So choose running friends. First choose running friends which are like-minded, those who are passionate about running, those who have those who are ready to do training every day, not the one time type, आज आ गए फिर पूरे हफ्ते नहीं किया, मैं तो संडे के संडे करता हूँ. No, if you are interested in running, if you are interested in competing, if you are interested in running marathon, then you should choose your running group which is ready to do workout minimum 3 times, ideally 5 times, and the best is 7 times a week. And once you have a nice group, then always be with the runners in your group who are little better than you. बड़ा फ़ायदा होता है उसमें. When the runners are faster than you and you are trying to cope up with them, then you improve your timing. This is for laymen, like not only laymen, for everyone up to the elite class. If you are practicing with better runners, you improve because of their pace. You try to cope up, and obviously you will improve. So first thing is this. Now suppose you are a beginner. So once you are a beginner, okay, in your group there will be some slow runners, some mediocre, some fast runners. So first be with the slow runners. The moment you feel that now they are you can run faster than them, then switch over. Always switching over to better runners. I'm not saying better groups, because if you stay with one group, you are always respected. If you keep changing your group, if you keep changing your coaches, if you keep changing your clubs, then one can say you are fickle-minded, or you have no faith in your group, you have no faith in your coach, or you have no faith in yourself. एक ग्रुप में रहे, सोचा अरे यहाँ तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, चलो दूसरे ग्रुप में चले जाएं. ऐसा नहीं, पहले से ही आपको सही ग्रुप लेना है. आजकल फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे कोचेस हैं, सब क्लासेस ले रहे हैं, सब एडवाइस कर रहे हैं. तो आप ऑब्ज़र्व करो कि किसके साथ आपको रहना है, और डिपेंड करता है कि आप को वो फैसिलिटी आपके नियर बाई प्लेस पे अवेलेबल है भी या नहीं. तो सबसे पहले तो आपकी सराउंडिंग्स, जहाँ भी पार्क है, तो अपने अच्छा वाला ग्रुप चूज़ कर लिया. ऐसा वाला ग्रुप नहीं, अगर आप सीरियस रनर है तो, कि रन किया उसके बाद चले गए बियर पार्टी के लिए, तो आपका जितना रनिंग है उसका स्वाहा हो जाएगा. अगर आप compete करना चाहते हैं, देखिए 3 तरह के रनर्स होते हैं. एक बिल्कुल मस्ती वाले रनर्स. तो अगर आप ओनली मस्ती वाले रनर्स हैं, देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज यू एनीथिंग. बट if you are a mediocre runner, but in your competitions you want to improve your timing, you want to go on the podium in the open category, in the veteran category, then you have to have discipline. So I'm advising those kind of runners. Secondly, if you are elite class runner, then you have to sacrifice many things, to reach to the top. So कोच की बात जब आती है तो आपको ये देखना चाहिए कि उस कोच में कोच का क्वालिफिकेशन, कोच का बैकग्राउंड, कोच की परफॉर्मेंस. 3 तरह के कोचेस होते हैं जो बहुत अच्छी कोचिंग दे सकते हैं. एक जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, एंड हाईली क्वालिफाइड मीन्स एक्चुअल हाईली क्वालिफाइड. दे कैन गिव यू गुड गाइडेंस. एक कोच होते हैं जो
परफॉर्मर होते हैं और बाद में कोच बन जाते हैं, वो भी अच्छी कोचिंग दे पाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। जिन्होंने 20 साल इंटरनेशनल रनिंग या नेशनल लेवल पे, टॉप लेवल पे अगर परफॉर्मेंस दी है और अगर वो आपका कोच है तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छी एडवाइस देगा क्योंकि उसने वो भुगता हुआ है। कहते हैं ना, जाके फटे न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। और तीसरे जो कोच होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, जो अपने बैकग्राउंड में परफॉर्मर होते हैं, चैम्पियंस होते हैं और क्वालिफाइड भी होते हैं। ऐसे कोच सबसे बेहतर माने जाते हैं। अब आ गया कि आपने उनका ये बैकग्राउंड देख लिया, उसके बाद आपने ये देखा कि वो कितना बड़ा मोटिवेटर है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपको हर बार डिमोरलाइज कर रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्मर हो, अरे तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो, मैं तो अपने ज़माने में ये करता था, है ना, और अरे तुमसे तो ये होगा ही नहीं। ऐसे कोच के साथ में आप ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कोच के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करता हो, आपको अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता हो, आपको वो पूरे टाइम एनर्जी लेवल आपका हाई रखता हो। ऐसे कोच को रखो। और उसके बाद ये देखो कि उस कोच के बैकग्राउंड में कितने उसने एथलीट्स या कितने रनर्स को कोच किया और वो कुछ इम्प्रूव कर पाए, वो कुछ बेहतर कर पाए, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो पाया, उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन का नॉलेज है, उसको फिटनेस की पूरी नॉलेज है। इस तरह का कोच आपको देखना चाहिए। अब कोचेज़ में भी क्या होता है, कई फिटनेस में एकदम माहिर होते हैं, परफॉर्मर नहीं होंगे लेकिन फिटनेस में बहुत माहिर होंगे। तो आपको अगर फिटनेस में ही जाना है तो आप ऐसे कोच को ले सकते हैं। आपको मैराथन में परफॉर्मेंस दिखानी है तो फिर आपको कोच भी वैसा ही लेना होगा ना। ऐसा कोच जिसने ना तो कोई पढ़ाई करी, ना उसका मैराथन में कोई परफॉर्मेंस है, वो आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो किताबी ज्ञान होता है, सिर्फ किताबी ज्ञान या गूगल से पढ़ने से कोचिंग नहीं आती है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के कोच के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अभी कल की बात है, मैंने अपने ये आपका तीसरे क्वेश्चन का है, हाउ टू ब्रीथ वाइल रनिंग। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि दौड़ते समय आपको मैराथन में दौड़ते समय आपको बिल्कुल नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह एक बिल्कुल बंद करना चाहिए, और कुछ और चीज़ें थी। हाँ, नंगे पैर दौड़, नंगे पैर मैं करता हूँ, नंगे पैर मैंने ये रिकॉर्ड किया, नंगे पैर मैंने वो रिकॉर्ड किया। अरे भाई, पहली बात तो नाक से सांस लेना, मुंह को बंद रखना मैराथन में बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वाइल रनिंग यू नीड मोर ऑक्सीजन, you need more air, so it's natural to open mouth and run। भाई, जब आप तेज़ दौड़ेंगे तो मुंह तो खुल ही जाएगा। अगर आपने मुंह बंद किया तो क्या होगा, यू रिस्ट्रिक्ट योर एयर पैसेज, क्योंकि नाक से भी सांस जा रही है, मुंह से भी हवा जा रही है अंदर, और आपने उस पैसेज को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पैसेज को ब्लॉक किया तो क्या हुआ कि आपकी जो मसल्स हैं, दे विल स्टार्ट अनएरोबिक एक्टिविटी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। उसमें क्या होगा, उससे आपका लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाएगा, यानी कि फटीग लेवल ज़्यादा हो जाएगा। आपने कभी स्प्रिंटर्स को, इंटरनेशनल लेवल के स्प्रिंटर्स को फिनिश करते हुए देखा है? उस समय क्या होता है, उनका मुंह एकदम ऐसे खुल जाता है। कोई भी अच्छा खिलाड़ी जब फिनिश कर रहा होता है मैराथन या 10K, 5K या 100 मीटर्स, कोई भी ट्रैक इवेंट, तो वो मुंह से भी बहुत ज़ोर से एक्सेल करता है, क्योंकि अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से निकालनी होती है, तो उसका मुंह वो खोल देता है। तो हम जो मैराथन रनर्स हैं, जिनको 10K में से 30 मिनट्स टू 50 मिनट्स, जो भी आपकी फिटनेस है उतना दौड़ना है। हाफ मैराथन में आपको 1 आवर 10 मिनट से लेके 2 आवर्स तक दौड़ना है। फुल मैराथन में अगर अच्छे रनर हैं आप, तो आप 2.5 घंटे से लेके आपको 4-5 घंटे तक दौड़ना है। तो आप अगर मुंह बंद करके दौड़ेंगे तो आप हाराकारी कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। इतना लैक्टेट बिल्डअप हो जाएगा, उससे क्रैम्प्स आ जाएंगे। तो कृपया करके जब भी आप दौड़ें तो नाक और मुंह दोनों खुला रखें। बल्कि अगर आप स्पीड से दौड़ रहे हैं
तो अगर आप ब्रेथलेस हो रहे हैं तो उस समय 5 या 7 बार अपनी डीप ब्रीद आउट करें, हाथ को नीचे ढीला छोड़ दें। ऐसे करके जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा, और उसके बाद अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कर दें। तो ये तो हुई सांस लेने की बात। और नंगे पैर दौड़ना, कृपया करके ये गिमिक्स जो हैं इनको छोड़ दें। जो हमारे पुराने रनर्स नंगे पैर दौड़ते थे और उनमें से कुछ चैंपियंस भी हैं, तो वो उनकी आदत हो गई थी। लेकिन ये देखो, हैबिट इज़ अ हैबिट, व्हाई नॉट अ गुड हैबिट। जब अब इस ज़माने में, उस ज़माने में तो कुशनिंग शूज़ अवेलेबल ही नहीं होते थे। हाँ, अब तो सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में। तो जब आपके पास में सब कुछ अवेलेबिलिटी है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो कृपया करके जब आप रनिंग प्रैक्टिस करें तो नंगे पैर करने की ज़रूरत नहीं है। नंगे पैर करने से जो आपका, देखो पहली बात तो जब आप रनिंग करते हैं तो 3 times मोर देन योर बॉडी वेट इम्पैक्ट गोज़ ऑन योर नीज एंड योर फीट, तो इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने कुशनिंग शूज़ पहने हुए हैं तो आप एक तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी के इम्पैक्ट को, कुशनिंग दे रहे हैं, तो उससे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और रेसिंग शूज़ किस लिए बने हैं? सारे वर्ल्ड में लोग रेसिंग शूज़ पहन रहे हैं, कुशनिंग शूज़ पहन के ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड होगा ना इसके पीछे। तो वही पाउंडिंग को बचाने के लिए, इम्पैक्ट को बचाने के लिए, प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन के लिए शूज़ ज़रूरी हैं पहनने। और जितनी भी ये स्टंट्स होते हैं मैराथन में, नंगे पैर करना और ये सब, ये स्टंटबाजी अगर आप सीरियस रनर हैं तो ना करें। अगर आपने मस्ती करनी है कि मैंने तो नंगे पैर ये कर लिया वो कर लिया, तो बात दूसरी है ना। मैं मस्ती के लिए तो कुछ भी मनाही नहीं है ना, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। आप मस्ती तो कैसे भी कर सकते हो। अब एक बंदा 20 किलोमीटर करता है जाके, फिर बियर पार्टी करता है, तो वो तो मस्ती कर रहा है ना। लेकिन अगर आप सीरियस रनर हैं या आप कुछ अपना टाइम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की मस्ती करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। एक प्रताप सिंह हैं स्पोर्ट्स संघ के, उन्होंने कहा कि दीदी मेरी बेटी 11 साल की है, बहुत अच्छी है रनिंग में, तो मैं उसको क्या ट्रेनिंग दिलवाऊँ? तो भाई, अगर आपकी 11 साल की बच्ची है, अगर कोई भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, उनका 14 ईयर्स तक का बच्चा है, रनिंग में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, रनिंग में बहुत अच्छा है, तो अगर उसको रनिंग में इंटरेस्ट है तब तो आप उसको वर्कआउट्स में डालें, किसी स्टेडियम में, अगर स्टेडियम पास में नहीं है तो पार्क में, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि 14 साल तक के बच्चों को मेरे हिसाब से ट्रैक इवेंट्स करने चाहिए। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर एज़ पर द एज। उसमें जब उनका इम्प्रूवमेंट होगा, तो अगर वो रनिंग में अच्छा है और 2-3 साल के बाद जब वो 14 साल का बच्चा, जब वो 18 साल का होगा और अगर उसने क्रॉस कंट्री तक ही किया होगा, 3 किलोमीटर्स तक किया होगा, तो वो इतना बेहतर लॉन्ग डिस्टेंस रनर बन सकता है। अगर उसको आपने बचपन में ही 10 किलोमीटर हाफ मैराथन करा दी, और कई मैं तो उनको बेवकूफ़ कहती हूँ जो फुल मैराथन भी दौड़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो आप उनको वहीं ख़त्म कर रहे हैं। एक तो बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ होता है। रनिंग इज़ नॉट अ जोक, रनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो अगर आपकी बॉडी फुल्ली डेवलप नहीं है, आप 18 साल के नहीं हुए हो, तो आपको मैराथन में नहीं जाना है। तभी तो रूल है, जितनी भी मेजर मैराथन्स हैं, इंटरनेशनल मैराथन्स हैं, सो कॉल्ड रिकॉग्नाइज मैराथन्स हैं, AFI, IAAF, एम्स की रिकॉग्नाइज मैराथन है, उसमें 18 साल से नीचे के बच्चों को एंट्री ही नहीं मिलती है। और अभी तो बहुत से अच्छे जो मैराथन ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी इस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये कहना वंडर बॉय और वंडर गर्ल, मैंने 40 साल इस मैराथन रनिंग में, इंटरनेशनल रनिंग में, नेशनल रनिंग में गुजारे हैं, और मैंने बहुत से वंडर बॉय और वंडर गर्ल देखे हैं जिनको या तो अर्थराइटिस हो गया, या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या फिर 17 साल के होते होते वो गायब हो गए उस फील्ड से। तो इसलिए जिस समय उम्र कच्ची है, उस कच्ची उम्र में ट्रैक रनिंग तो फिर भी ठीक है। और हाँ, अगर आपकी प्रताप भाई, स्पेशली आपके लिए, अगर आपकी बच्ची 11 साल की है, तो 11 साल की बच्ची को बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग के वर्कआउट वो वीक में अगर 2 या 3 बार करे तो काफ़ी है। उसको दूसरे गेम्स में ले जाएं जहाँ उसका और इंटरेस्ट हो, उसकी क्रॉस ट्रेनिंग कराएं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, और किसी गेम में डाल दें। मार्शल आर्ट ज़रूर कराएं। मार्शल आर्ट बचपन में
अगर सीख लिया तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो जवाब ही नहीं, फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसके स्पीड, उसकी फ्लैक्सिबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। प्लीज़ उसको एंड्योरेंस वाला इवेंट ना कराएं। एक 11 साल की बच्ची के लिए 5 किलोमीटर मैराथन के समान होता है, तो उसको 5 किलोमीटर्स भी प्लीज़ ना कराएं, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, ये 3 ही क्वेश्चंस थे, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे भी 15 मिनट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपका जवाब दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो और क्वेश्चन पूछिए। आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को जाता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करती हूँ। जो मैंने 40 साल में, आई एम अ क्वालिफाइड कोच, एन आईएएस क्वालिफाइड कोच, आई एम ट्वाइस एशियन मैराथन मेडलिस्ट, gold and bronze, and Limca Book of Record of winning maximum number of marathon by any Indian in maximum countries, that is 26 countries. I've done 76 full marathons and 123 half marathons with the number of 10Ks. My best time in 10K is 35 minutes 45 seconds. My half marathon best time is 1 hour 16 minutes. And full marathon time is 2 hours 43 minutes 33 seconds in Paris. So love you all, and keep watching my videos and keep asking me questions.